MBA. So just like Vishal was saying, I did engineering. I aspired to do MBA, but मेरा engineering में return हो गया था, तो मेरे को 6 साल लग गया था. But I started working, so I couldn't do MBA. But I was a sincere person, so I did well in my jobs. Then 14 years back, I started ECHAI. So for 8 years, it was a small nice thing in Ahmedabad. It is still a nice thing, but our scale is pretty incredible. So if you are into startup space, entrepreneurship space, wherever you would go in the world, you'll find some pieces of ECHAI. My name is Jitendra Lakhwani. I am an engineer. I started my career with IBM, then I did my MBA, then again went on to head one of IT companies. I was based out of Delhi. I come from a very small town in Kutch, Gandhidham, if somebody has known where is Gandhidham. And my job, in a nutshell, is to solve the professional queries of each and every working professional around the globe. That's our aim. So as of now, we are into services, completely bootstrapped, declined investment twice in the last couple of years. We are coming up with a product also. So whatever we earn from the services, we put it into product development. Hi everyone, I'm Nikita Maheshwari. So I graduated from Gujarat National Law University in the year 2015, which is, so professionally I'm a lawyer. Twist and turn to that, I left law because I fell in love. I started my first company, which is StyleBazaar.com. Pivoted it thrice, failed it, and had to close down the operations, making it more brick and mortar model, limiting it to Bangalore only. And then with all the data I had, I started Tatkal Lorry. Tatkal Lorry was started in June of 2016. So we are 7 years old. We serve in 13 cities. We are completely bootstrapped. We are a niche logistics and supply chain management company in the field of ceramic tiles and sanitary only. Why that? Because India is the second largest producer of tiles in the world. Of that, 90% comes from this small town called Morbi. I took a geographical advantage and I wanted to bring a behavioral change in the industry. So yeah, that's about me, from a lawyer to an entrepreneur. Hi everyone, my name is Faraz. I did my BBA from NR Institute, then went on to do my MBA from Nirma. आप लोग के जैसा ही कुछ induction था. I was sitting on that side of the stage. That's where I was talking to my friend. I remember that. He's like, what would be success to you? And I see the table, जब stage के उस side से इस side पे आ जाओगा ना, that would be success for me. So while you were doing MBA में ऐसा क्या सीखा जो आज भी आप use कर रहे हो? Last 6 years of starting the business, we have never done an organic BD. It's just now we are starting to do organic BD. We have spread across India, US, UK, Canada and Australia. 5 देशों में काम करते हैं and all through meaningful relationships that we have cultivated. And जब वो relationships cultivate किए थे ना, वो ये नहीं सोच के किया था कि अरे फ्यूचर में धंधा देगा मेरे को. But meaningful relationships थे कि कभी किसी की help की थी. You will over the next couple of years बहुत memories बनाओगे, right? You will get into relationships. You'll get into friends, build meaningful networks. So build those networks which will be able to help you. बाकी जो पढ़ रहे हो वो तो नेट पे अवेलेबल है, बाहर ग्रेजुएट हो जाओगे तो भी मिल जाएगा नेट से. बट build those meaningful relationships, genuine relationships, not transactional relationship. कि मैंने इसकी हेल्प की, ये मेरी हेल्प नहीं कर रहा है या ये हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ. Don't go there. Build genuine, helpful relationships. वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में काम आएंगे. That is my biggest learning I would do from. पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर जो भी करो तमीज से और शिद्दत से करना. GNLU में मैंने बिल्कुल कतई पढ़ाई नहीं की थी. एवरेज स्टूडेंट थी मैं बहुत ही ज्यादा. पति मेरा, नाउ आई एम मैरिड टू हिम, बैक देन बॉयफ्रेंड, बैच टॉपर. But what I did was I used to work very closely with the admin, very closely. So जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं जैसे Excel, Word, जिस पे आप जिंदगी जियोगे. When you start off your business, if you're not a SaaS business, 100% you'll be living on Excel and Word for the next 2 to 3 years, right? Those are little skills and those are soft skills that you'll learn. So अपने MBA में projects करते वक्त please Excel और Word का बहुत संयम और तमीज से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वो आपको आगे ले जाने वाला है, वो आपकी नौकरी में भी काम आएगा. So something that helped me now was starting my first business while I was at MBA. So back then थोड़ा difficult था business start करना. Probably you can dedicate every day 1 hour
2 hours to your business and Instagram पेज ओपन करो, कुछ बेचने को ट्राई करो, राइट? दैट वुड टीच यू द सेल्स स्किल. इंडिया में so I heard a podcast about Kunal Shah. Kunal Shah, Indians are terrible at selling stuff. Because problem क्या होता है मन में, माँ बाप ने ना वो नॉर्म बना के रखा है कि इसकी अरेंज मैरिज होगी, तो बच्चे को अपने को कहीं पे बेचना नहीं है, राइट? You see the Western market, वो उसको डेट करना है तो अपने आप को बेचना पड़ेगा. How I am a better person than the other guy that you know or other female that you know, right? तो आप वो सेल्स स्किल बहुत अर्ली सीख जाते हो. इंडिया में क्या है, माँ बाप ढूंढ लेंगे तो सेल्स स्किल कभी अचीव नहीं होता है. So probably जब आप सेल्स की स्किल अचीव करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Something that was handy was कि अगर मैं एक्सेल पे काम कर रहा था तो मैं अपने बिजनेस के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बना रहा था. So that is where I exactly know कि वो नंबर कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और क्यों ऐसे जाना चाहिए. I'll continue asking them questions. So anybody has any questions about their businesses, the industry they are working on, or to me also. How do you deal with that? Like there is so much competition in the market in this segment. So what is the USP for your company? How do I differentiate from the other transporter in the industry? So we are one of the most premium services specifically in ceramic tiles and sanitary. पोर्टर हर जगह हाथ मार रहा है, तत्काल लॉरी सिर्फ एक जगह हाथ मारी, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. मैं बहुत नीश में काम करती हूँ. सो मेरा कंपटीशन इज मोर लाइक लोकल ट्रांसपोर्टर जो मोरबी में है, जो अलग सिटीज में डिस्पैच करते हैं. ठीक है, तो पोर्टर कंसेप्ट बहुत अलग है और मेरा कंसेप्ट बहुत अलग है. और पोर्टर ऑनलाइन है, तत्काल लॉरी ऑनलाइन बना था पर प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था, तो मार्केट ने बोला गेट आउट, एंड वी हैड टू शिफ्ट टू फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, Google Sheets. We pivoted as the market needed us to be. It's been 6 years. Believe me, मैं आज भी उनको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाई. उसको यही लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के 10 मिनट बर्बाद करूं, फोन करूं, नेगोशिएट करूं, तभी. उसको नहीं करना है. So you adapt to the market. पोर्टर ऐसा नहीं है. पोर्टर आप यूज कर सकते हो, मैं यूज कर सकता हूं. तत्काल लॉरी आप नहीं यूज कर सकते. वो सिर्फ रिटेलर, होलसेलर, डीलर्स ही यूज कर सकते हैं टाइल्स के. How did you reach upon the idea of the business you are currently in? What was the trigger that made you think कि हाँ ये business करना है? लड़का 5वीं 6वीं में दुकान पे बैठ जाते हैं, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव दैट लग्जरी की दुकान पे बैठूं. मेरे फादर की साइड, मदर की साइड, नोबडी वाज वेल स्टडीड. I am the first child in my family on both the sides who went to English medium school, who did engineering, who did MBA, and who was running his own business. बाकी सबका या पान का गल्ला है तो भी छोटा है तो खुद का है, लारी है तो भी छोटी खुद की, या बड़ा शोरूम है तो भी खुद का है, right? I thought मेरे जैसे there are millions of people out there who are still struggling. So ये M2 रातों रात खड़ा नहीं हुआ. So after my MBA, when I was doing a job, मैं रात को, दिन में ऑफिस की जॉब करता था, रात को आके खुद की वेबसाइट बनाई, खुद का ब्लॉग बनाया. So मैं जो आज भी मेरी वेबसाइट देखोगे ना, वो सिर्फ ब्लॉग ओनली, वो 2013 से चल रहा है. मैं खुद आके वेबसाइट बनाता था, खुद ब्लॉग लिखता था, खुद उसमें करियर काउंसलिंग की चीजें डालता था. देन वी स्टार्टेड टू रिक्रूटमेंट्स एंड एचआर कंसल्टिंग, वेयर वी कुड क्रिएट मोर इंपैक्ट इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स की जॉब नहीं मिल रही है, राइट? तो अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सब कुछ अच्छा है, या शायद इंग्लिश नहीं आ रही है इसलिए जॉब नहीं लग रहा है, या कुछ एक बहुत छोटा माइन्यूट गैप है स्किल सेट में तो जॉब नहीं लग रही है. सो वी काउंसिल देम, कोच देम एंड देन वी गेट देम प्लेस्ड. आई वाज जस्ट शेयरिंग विद हिम कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि काम नहीं करना है, सबको बैठ के अपने घर पे बैठ के 50,000 सैलरी चाहिए. स्किल मैं रियल मनी गेमिंग वाले उसी इंसाइट पे काम कर रहे हैं. हाँ, तुम ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो, बाकी सब काम वो सर. सो इसी में सब इनबाउंड होता है ना, सब सामने से रीच आउट करते हैं. तो फिर स्टार्टअप में क्यों चले गए वापस? गिरने के बाद खड़े होने का प्रोसेस इज समथिंग दैट यू नो, वो एक एड्रेनालिन रश देता है आपको. At the same time, people who are 0 to 1 would always prefer 0 to 1. So one of the podcasts that I saw with Shantanu Deshpande and Aman Gupta. So Aman Gupta is no more the head honcho with Boat. So Boat ने एक subsidiary शुरू की जहाँ पर लोग watch market focus कर रहे हैं. He is now handling that. तो कुछ लोग 0 to 1 के लिए अच्छे होते हैं, उनको 0 to 1 ही करना चाहिए. तो you need to understand कि यार आपका क्या forte है. And with respect to the ideation stage, lot of Gen Zs miss out on this ideation thing is because जब आप आपके खाने के टेबल पे बैठते हो ना, तो एक हाथ में फोन होता है और आंखें टीवी पे होती है. While I guess जितेंद्र would pretty well agree to me के सिंधी फैमिली में भी अगर आप टेबल के ऊपर बैठे हो ना, तो घर वाले धंधे पे बात करते हैं, कितना नफा किया, कितना नुकसान किया और आज कितना माल रिटर्न आया. So that is where you learn a lot of things. और वो जो एक आपका क्यू डेवलप होता है, उससे आपको कभी कुछ आप सुन लेते हो, वो आइडिया बनता है आपके लिए. ऐसा नहीं है कि आइडिया ओवरनाइट आपको कुछ दिख गया वहां पे. All my childhood I have listened to the stories with my दादाजी.
टिल 12th स्टैंडर्ड आई वाज वेरी कनेक्टेड विद माय दादाजी. हम साथ में डिनर करते थे. वो यूज्ड टू वर्क एट अ शॉप. वो शॉप से आते थे, मुझे बताते थे आज शॉप पे ये हुआ, ये कस्टमर आया, वो कस्टमर आया. वो बचपन से चीजें ना इंग्रेड होना शुरू हो गई. पहले खुद का शॉप नहीं था बट पता था कि क्या हो सकता है. सो सबकी बिजनेस फैमिलीज नहीं होती हैं. जिनकी सर्विस क्लास फैमिलीज होती हैं, जैसे कि मेरी थी, द डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन एट माई प्लेस जनरली इज वी टॉक फ्रॉम लॉ टिल व्हाट इज द न्यू टेक प्रोडक्ट, कि ये सोच रहे हैं, ये हो सकता है ऐसा. एंड वेरी राइटली व्हाट फराज हैज सेड इज, आपकी स्टार्टअप जर्नी में ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ अच्छे हो. जैसे मैं एग्जीक्यूशन में अच्छी हूँ, तो मैं हर बार नए प्रोडक्ट का एग्जीक्यूशन करने में लग जाऊंगी. एक बार तत्काल लॉरी का एक स्ट्रीम, एक वर्टिकल खड़ा कर दिया है, अब दूसरे वर्टिकल पे स्टार्ट वर्किंग, वो अपने आप टीम संभालेगी. और आप कॉन्ग्लोमरेट या बड़ी कंपनी, अगर आपको जिंदगी में वो अपेक्षाएं हैं खुद से, तो वही करना. Figure out where your strength lies, hire smarter people than you, let them take care of those things. अपना ईगो सर पे मत चढ़ो, मैं सब कुछ करूंगा. नहीं, क्यों करना है? वो करो जिसमें अच्छे हो, बेहतरीन हो. If you come from a family like she said कि आप सर्विस क्लास से हो, राइट, तो फिर वहां से आपको ये सीखना है कि अच्छा मालिक कैसे बनना है. बिकॉज वो चीज घर आके, बिकॉज यू सी योर पेरेंट, राइट, क्या ये सैटरडे भी काम कर रहा है, संडे भी काम कर रहा है, तो ये क्या नहीं करना है वो आप वहां पे सीख लेते हो. सो जो सीखना है ना वो डिनर टेबल पे बहुत ज्यादा होता है, बशर्ते कि आप बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. बिकॉज they've seen a lot of things, they've got a lot of experience. एंड जस्ट एडिंग ऑन टू दैट, अगर आपका ऐसा सेटअप नहीं है तो आप रीडिंग अच्छा करो, ऑब्जर्व करो लोगों को. सो इन माय केस मेरा ऐसा कोई डिस्कशन, आई डोंट थिंक मेरा 22-23 साल तक होता था. बट आई वाज वेरी एम्बिशियस पर्सन. सो वो कैनवास भी बड़ा हो जाता है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है. तो फिर आप कैनवास कहीं पे भी ले सकते हो. तो इन लाइफ गिव द अपॉर्चुनिटी, वो कैनवास बहुत बड़ा हो गया. पर डायरेक्शन वो था कि आप जो भी परस्यू करते हो, जैसे निकिता ने भी पहले बोला था, उसमें सबसे बेस्ट रहो आप. Artificial intelligence, basically. So, what do you think would it impact the layoffs and recruitments? And so, is like, how does it affect investments now? What change has it brought to the entire? I can tell you from my experience, two things are happening. One, entry-level jobs are vanishing, right? For example, there's a AI called Mind Journey. तो उसने ग्राफिक डिजाइनर्स को पूरा एलिमिनेट ही कर दिया. आप खाली उसको प्रॉम्प्ट डालो, आपको वो फोटो आ जाती है. सेकंड चीज, फॉर द हायर लेवल जॉब्स जहाँ पे थोड़ा IQ ज्यादा चाहिए और थोड़ा एनालिसिस ज्यादा चाहिए, so the traditional job role will change. So rather than somebody actually doing that job role, it might be getting replaced by somebody who can use the AI in a better way. So AI in two parts. One, it will be as a tool to help you do your jobs in a better thing. Second is, it will also replace a lot of entry level jobs. Okay, for us or VC. So VC is all like, क्या पहले आपको रणबीर कपूर पसंद था, उसकी मूवी आ रही थी, तो अभी रणवीर सिंह पसंद है, बट इटर्नल शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ही रहेंगे. सो जो कोर बिजनेसेस है वो कोर बिजनेसेस हमेशा कॉन्क्रीट रहेंगे. ट्रेंड कुछ भी चल रहा हो, एक साल पहले Web3 चल रहा था, आज AI चल रहा है, AI इज डिमिंग, कल कुछ और आ जाएगा. बट जो कोर बिजनेस है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है वो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं आज. पर मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, AI के बारे में पढ़ो, सीखो, समझो. वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा. वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करे नहीं करे बात में बात है, बट हुई स्टॉप. जैसे कोई बोलते हैं कि ये सीखना चाहिए कि नहीं, कौन नहीं सीखने का डाउनसाइड क्या है? तो आप सीखो ना, आप पढ़ो उसके बारे में, क्योंकि दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, दैट विल अफेक्ट द लाइफ. आप जो इंडस्ट्री में काम करोगे, जो जिनके आपके सीनियर्स के साथ काम करोगे, या जो भी लोग प्रोफेशनल लाइफ में करोगे, वो इस सब के मास्टर्स होंगे.